Welcome to all of you. And let me take a quick confirmation from our favorite MSMEX team. Is my audio visual all okay? Thank you, superb. So I logged in from lovely city of Bangalore, and let me understand from all of you is that which all city you are from, which all city you logged in from, so that we'll understand that कि इंडिया के कौन कौन से पार्ट्स को हमने कवर कर लिया. Sukumaran Ajish is from Bangalore. Great, Mr. Sukumaran. Okay, that's great. And everyone, I would like to welcome all of you because it's pretty tough. It's not easy कि आप आज वीक के डेज में वीकडेज में you are actually spending one year, sorry, 1 hour completely on inspiring stories, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसमें आप डिवोट कर रहे हो, डेडिकेट कर रहे हो. तो आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रॉम कोर ऑफ माय हार्ट एंड फ्रॉम deep of my heart. In fact, for joining this particular session, Mr. Ablay Bodhi ji, Neelkant, Rahul Kumar, Shankar Bale, Sugata Nair, everyone, welcome to the show here. Arvind, okay, Mukesh, Salesh, everyone, just type that which location you are from, so that I'll understand, and then probably will tell you very clearly that what we are having in store for us, for all of you today. And today's thing is going to be very phenomenal, very different than rest of the session. इसका मैं आपको एक what I can say that कमिटमेंट करता हूं स्टार्टिंग ऑफ द सेशन कि आज का सेशन काफी डिफरेंट होने वाला है, काफी मजा आने वाला है, हर एक को काफी अच्छा लगेगा, काफी कनेक्ट कर पाओगे आप सभी लोग. सो दैट वे लेट मी सी दैट how many people are interested for this particular new series of this inspiring session where we are actually discussing on those lines. So just type interested if you are interested and if you are liking it. Let me take the input from the comment box that how much people are interested and are getting inspiring stories for that, right? Every one of you just put on the chat, and if it is a first time for you, type FT in the comment box. Let me see that how many of you are joining for the first time. Okay, thank you, Mr. Rahul. Okay, how many of you are joining for the first time? Just type FT in the comment box. If you have already joined many times, then you put empty in the comment box. So let me see how many FT, how many empty. FT, empty, FT, empty. Let's see. Okay, Sukumaran is joining many times. That's great. Neelkant is many times. That's great. Move on, guys. Absolutely. I want every one of you to please put your response on the chat. So that's how we'll understand that how much active you are and how much sincere you are. Okay, so we have got Arvind has mentioned empty. Okay, multiple times. Salesh mentioned multiple times. Vijay mentioned multiple times. Okay, we have got even Surekha mentioned multiple times. That's really amazing. So let me just bring to the show the guest for our evening today, Mr. Manil Mayank Mishra ji. Okay, and let me take a quick confirmation from you is that if this slide is visible and full screen. And very important thing which I want to share you today is that somebody who has actually कहता है ना कि आपदा को अवसर के रूप में समझना, right? Opportunity can actually become optimism for a people, right? So that's how we are going to have respect person currently with us, where he will help us in terms of taking his complete journey. एक entrepreneur की journey कैसी होती है, किस तरीके के challenges आते हैं, किस तरीके के support होते हैं, all those things we are going to have a very detailed discussion with Mr. Manil Mayank Mishra ji, who is a founder of Shahjahanpur Prosceniums, right? ये word बहुत unique word है. ये मतलब even many people will be very much interested to know about that. So definitely I would like to welcome to the show Mr. Mishra ji. Okay. Hi, yeah. Am I audible? Vivek sir? Great. You are very much audible, and but your video, yeah, please. Just a sec. Yeah. Am I visible now? You are not yet. Okay. Just give me a moment. Not a problem.
So just to tell, like, about the quick brief about Mr. Manil Mishra ji is that, matlab, I was very much inspired when I actually got connected through LinkedIn, and like, when I had a discussion with him. So as you all can see, like, he's a trainer for camera and stage, mainly acting, independent theater training, storytelling, and all, right? I suggest all of you to just look into that aspect, that how a person from non-conventional background can create a business out of it, right? So let me, by the time Mr. Mishra is coming on the camera, let me understand from all of you is that, like, which all business you are from, before we go ahead and before we take the discussion forward, right? Which all business you are from, even if you are from any business, or even if you want to start the business, just I want to start. Let me see that, like, what type of people are there in the room, so that we can connect maximum of that. So Arvind has mentioned is from the food business. Okay, we have got Salish from FMCG business, we have got Vijay from edutech business, we have got Mukesh from no problem, no problem. Okay, Mr. Manil is actually facing some problem on through the laptop, but that's absolutely fine. We are all in VUCA world. We are all in VUCA world, जहाँ पे कहते हैं ना कि हर जगह पे कुछ ना कुछ uncertainties we can expect that. So no problem, Mr. Mishra, you take your time. Okay, let me understand from the room right now is that, can you tell me one name which has actually inspired you so far in inspiring story? Every one of you, if you remember any one name in inspiring story, just type that name. Let me just understand from you anyone whom you remember. Mr. Avlay, Mr. Neelkant, Mr. Rahul Kumar, Shankar Bale, anyone, any of the name if you remember. Sugatha, Sukumaran Najish. Okay, Kafi Azmi Sahab. Okay, that's really great. Okay, superb. And what one word you would like to put for inspiring story initiative by MSMEX? Since you guys are spending your 1 hour, I want you to put one word which you feel can be a resonance for this particular inspiring stories initiative. एक वर्ड जो आपको लगता है कि इंस्पायरिंग स्टोरीज के लिए आप बोल सकते हो, या आपको यहाँ पर are you getting motivation, or are you getting inspiration, are you getting positivity, are you getting experiences, are you getting expertise, just creating entrepreneur? Sukumaran Ajish ji, very well. Everyone just put one word, for MSME X platform which is being created, and this inspiring stories also. Just put only one single word. Let me see that, like, what one word is your amazing. Okay, that's really great. Superb. So are you back, Mr. Mishra? Yes, sir, I'm back, and I'm just switching on my camera also. No problem. Amazing. Not an issue. Right. Yesterday we had a very lovely discussion with Dr. Wasim, who was a dentist, and how he created the whole empire within pandemic. And today we have got Mr. Mishra, who is actually coming from a very unconventional, lovely Mr. Mishra. We are able to see you very well. Okay, and I like your complete background also, and the way you have mentioned, amazing. Thank you very much. Superb. Thank Very you. well. So yeah, so Mr. Manil Mishra, over to you. If you can just introduce just a bit about yourself, क्योंकि कहते हैं ना कि वो घोड़े के मुंह से घोड़े की कहानी सुनने में काफी आनंद आता है. तो we can start with that, and then afterward we can go ahead with a series of question. काफी कुछ है, तर्कस में बहुत सारे तीर हैं, एक करके छोड़ेंगे, तो be ready for that. Yeah. बिल्कुल. Thank you very much. At the very onset, let me pay my categorical regards and my gratitudes to you, Vivek sir, and to the entire team and family of MSMEX, so that they could understand me worthwhile to be a part of this session wonderfully well. And sessions like these, organizations like MEX, and MSMEX, and people like you, when you basically give us a lot of confidence, you give us that definition, social understanding of life, and tell us that you're
you're valuable enough to be on a session like this, it gives us a lot of confidence, artists like us. It gives a lot of impetus, thrust, और बहुत जोर से एक धक्का मारता है कि करते रहो जिंदगी में जो करना है. Superb. ये एक बहुत अच्छी बात है. And I'm really thankful, like I said before, I would want to reiterate myself that I'm really having a lot of gratitudes to the entire family of organization and to you. Introduction is, I've had a very colorful life to begin Wow. with. My dad being into civil services, so I've seen almost every district of Uttar Pradesh. And then I went to Delhi University to study, where I, surprisingly, I did not do any theater or any kind of thing during my college days. I'm a pass out from a good college, of which senior Bachchan, Mr. Amitabh Bachchan, is also a super duper alumni, a super duper senior of our. Shakti Kapoor ji hain, Satish Kaushik sir hai. तो बहुत एक tilt तो था क्या बात फिल्मों है. की तरफ, मीडिया की तरफ जाने का हमारे कॉलेज में. My college is Kirodimal College. Kirodimal College, yeah. I'm from KMC and I read Pol Science Honors. But कभी उस दौरान मौका नहीं मिला कॉलेज के दौरान Okay. कि आप एक्टिवली थिएटर या थिएट्रिकल एक्टिविटीज में या किसी एक ऐसी चीज में पार्टिसिपेट कर पाए. दो आई वाज हेवीली इनटू डिबेटिंग. Okay. I was basically, I still am a debater, and I debated for about 8 to 9 years actively in my college days, in my post-graduation days also. Wow. And I was the president of the debating society of Kirodimal College in my final year of Pol Science, but could not get the, I would say, not even a chance, but an opportunity of being into theater. Though everybody, we have a very respectable society which has a lot of say and a lot of, I would say, presence in Hindi film industry. And the Theatre Society of Kirodimal College is the players. Yeah. तो मेरे टाइम पे और आज मेरे साथ के लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं. दिल से मैं बहुत खुश हूँ इस बात को लेके कि आज वो फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम बनाए हुए हैं. From senior Bachchan to the people who are in my batch and even my juniors also. All people from players understood that I was made for players. Wow. But I could not get the chance because I was heavily into debating और मुख्तलिफ अलग-अलग चीजों में. Right. I did sit for a couple of examinations, including civil services, All India Civil Services. But since I'm sitting here, so that means that I could not crack it. I mean, ये बड़ी अच्छी तरीके से, very nice. जी, Awesome. तो Yeah. या फिर आप किसी और मौजू से या किसी और सब्जेक्ट से मुझे बुला रहे हो. सही बात है. Correct. हम लोग कुछ और बात कर रहे होते. I got a good rank in the law examination. So academically, I'm a lawyer. I did my law from Campus Law Center, Delhi University. Wow. और बहुत सरप्राइजिंग सी बात है कि मैंने एक्टिंग को पहले पढ़ाना शुरू किया, उसके बाद खुद आर्टिस्ट बना. क्या बात है. जी, तो लॉ करते वक्त एक छोटा सा मौका मिला. I did my cameo appearance in a great film. Rajkumar Gupta sir had been the prolific director of that film. No One Killed Jessica. Oh yeah. Okay. Yes. Yeah. तो, Right. जी, तो वो उससे पहले मैं पढ़ा रहा था. उससे पहले मैं टीचिंग एक्टिंग. Okay. तो जब और कुछ मेरे दोस्त यार जो थे वो कास्टिंग कर रहे थे मेरे कॉलेज से ही, तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार तुम ठीक ठाक बोल लेते हो, डिबेटिंग करते हो, इसमें कुछ करोगे क्या? तो मैंने कहा कर सकता हूँ, शायद ये एक ऐसी चीज है जो मेरे लिए ठीक होगी. तो वहां पे वो सिलसिला अनवरत चलता रहा और उसके बाद नो लुकिंग बैक. सो टीचिंग एक्टिंग एंड बीइंग एन आर्टिस्ट did start at that point of time, somewhere around 2010. Right. 2009 also. I was teaching before that also, taking like alag chote sessions here and there. Right. Then somebody contacted me to adapt a stage play for their own one of the ventures. In the sense, they were about to do a play, and they said that we have heard that you write decent, if not good. So can you adapt a play? And I still remember that was the first production which I actually contemporized. वो पीरियड ड्रामा है विजय तेंदुलकर जी का विट्ठला. अच्छा. उसको मैंने कंटेम्पराइज किया, आज के हालात में ढाला, इंडियनाइज किया. हालांकि मराठी कहानी थी वो. और उसका जो टाइटल था वो मुझे आज भी याद है, एक था भूत. एक था भूत. उसको कंटेम्पराइज किया. हमको ये आजादी हमारे प्रोड्यूसर ने दी. और उसके बाद उन्होंने मुझसे ये बोला कि यार लिखा तो ठीक ठाक है, डायरेक्ट भी कर लो. तो मैंने उस नाटक को डायरेक्ट भी कर दिया और आप लोगों की दुआ से वो नाटक बहुत अच्छा सक्सेसफुल गया. Wow, super. And yes, and the journey after that did not take any halt. There was no like jolt or any kind of stoppage. Of course, Corona वगैरह बीच में हुआ. But apart from that, in terms of creative skills, in terms of your own investment of energy and time, there was no looking back. फिर हम लोगों ने खूब
मन से नाटक किए, लिखे, प्रोड्यूस किया, डायरेक्ट किया, योर ओन सोल स्टोरीज, एंड by your by your love and grace of the God, by the grace of Mother Nature, one of my works would definitely be shown on one of the premier OTT platforms very soon. My own writing work, one of my scripts. वाओ, जी, वेरी गुड, क्या बात है। शुक्रिया। तो ये चला, उसके बाद हम लोगों ने कुछ अच्छे नाटक किए जिनको बहुत अच्छा, मतलब ऑलमोस्ट ऑल द इंग्लिश डेलीज ऑफ हिंदुस्तान ऑफ अ कंट्री डिड कवर ऑल ऑफ देम, और हमको बहुत अच्छा अप्रिसिएशन मिला। वन इम्पॉर्टेंट थिंग आई थिंक व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग, देयर वाज एक्चुअली अ डर्थ ऑफ गुड प्लेराइट्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एटलीस्ट इन द दिल्ली थिएटर सर्किट। तो लोग एडेप्टेशंस ले रहे थे, लोग शेक्सपियर की बात कर रहे थे, लोग मंटो कर रहे थे, लोग मॉलियर को प्ले कर रहे थे, लेकिन कोई खुद कम लिख रहा था। उस दौरान मुझे लगा मैं इतना बेवकूफ हूं, मैं शेक्सपियर कैसे अडेप्ट करूंगा यार, वो तो बहुत बहुत बड़े राइटर थे, मैं खुद क्यों नहीं कुछ लिखा जाए। और जब वो लिखा गया तो फॉर्चुनेटली वो ऑडियंस ने पसंद किया और कहा कि और भूख जो एक ऑडियंस की होती है वो बढ़ाई गई कि भाई और भी लिखिए कुछ। फिर ट्रेजेडी, रोमांस से लेके मर्डर मिस्ट्री से लेके डार्क कॉमेडी तक काफी कुछ रहा। और बीच बीच में मीडिया के लिए आपका जो एज एन आर्टिस्ट काम है और ऑन प्रोफेशनल लेवल एज अ स्क्रीन प्ले राइटर ये चलता रहता है और चलता रहा हमेशा। However, couple of our friends, जिसमें मैं अलग अलग जगह पढ़ा रहा था और मैं प्रोडक्शन कर रहा था, लेकिन पैंडेमिक से कुछ पहले हम कुछ दोस्त साथ बैठे थे और हम लोगों की ये बात चली कि यार एक कोई चीज है जो हम में समान हो, कुछ कुछ समानता है हम में। तो एक ये बात हुई कि यार कहीं ना कहीं हम सब थिएटर से आते हैं। अच्छा, ये सारे लोग जो हैं वो अपेरेंटली मुझसे कहीं ज्यादा बिजी हैं। कोई एक बड़े सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, कोई टेलीविजन जर्नलिस्ट हैं, कोई रिसर्च स्कॉलर हैं, कोई सिंगिंग कोच हैं। तो मुझे दुनिया में सब लोग जो हैं वो मिला के मुझे लगता है सारे मुझसे ज्यादा बिजी है, मैं एक्चुअली कुछ नहीं कर रहा हूँ। मुझे हमेशा मुझे ऐसा लगा ये सारे लोग बिजी है। तो उन्होंने कहा कि देखो, एग्जीक्यूशन की कमान जो है वो तुम ले लो, एक प्रोडक्शन हाउस शुरू करते हैं और कहीं ना कहीं थिएटर का एक नाम उसमें रहना चाहिए। और ये बात हम लोगों की टेलीफोन पे भी हुई, कुछ कुछ मिल के भी हुई किसी किसी से। और इस तरीके से एक तो हम जुड़े रहेंगे और एक छोटा सा एक ये मेरा भी पर्सपेक्टिव था उस वक्त के, यार जो अभी तक हम खुद के लिए करते आए हैं क्यों ना एक नाम के लिए, क्यों ना किसी एक अम्ब्रेला के लिए करें, किसी ने एक इजीज के लिए करें। तो then it was basically that's how the conceptual or I would say just a small sapling analysis or genesis of Shahjahan Prosceniums came into existence just before the pandemic. अब वो प्रोडक्शन हाउस को शुरुआत करने में वक्त लगता है क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें सोचनी होती है, ये सब होता है। और उस वक्त पैंडेमिक लग गया। I still remember that it was 22nd of March when the first lockdown was announced by the Honorable Prime Minister of India, मोदी जी के द्वारा। तो मैं शूट कर रहा था नोएडा में। I was shooting in hand. Yes. And I was actually on shoot. और एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसका ऐड है और मुझे फोन आता है और मुझसे कहा जाता है कि शूट के बाद आप जल्दी घर वापस चले आइएगा क्योंकि फिर शायद अब इस चीज का अंदाजा नहीं है कि कब आने जाने दिया जाए। तो जिंदगी में मैंने अपनी जो छोटी मोटी मेरी जिंदगी है उसमें मैंने ये सिनेरियो सुना था किताबों में और देखा नहीं था। करेक्ट। तो मैंने इसको बहुत चैलेंजिंग लिया और मैंने कहा कि यार क्या होगा। सबकी तरह मेरे दिमाग में, मेरे जहन में ख्याल था क्या होगा। फिर वो धीरे धीरे चीज ऐसे होती गई कि आपको अगर याद होगा विवेक सर, तो लॉकडाउन बढ़ता चला गया। यस। जी, आदमी ज्यादातर एक दूसरे से दूर होता जा रहा था, टेलीफोन व्हाट्सएप पे ज्यादा कॉन्वर्सेशंस बढ़ गए थे। तो हमारा बीच में फिर हमारे जिनको मैं इंस्पायरर्स कहता हूँ, मैं थिंकर फाउंडर हूँ इसका, शाहजहां प्रोसेनियम का। तो हमारी बीच में ये बात हुई, यार वो कहाँ गया हमारा कॉन्सेप्ट, मिलना तो पॉसिबल है नहीं, तो कुछ ऐसा करें कि क्या पैंडेमिक में इसको शुरू करें। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि पैंडेमिक में अगर शुरू करते हैं तो बहुत सारी चीजें ऑनलाइन हो चुकी थी। करेक्ट। व्हाट्सएप पे आप जो है फिल्म कैसे बता सकते हैं या किसी को कैसे बता सकते हैं, सबसे बड़ा चैलेंज था हम लोगों के लिए कि कास्टिंग भी अगर करनी है, अगर आपको एक्टर्स को लेना है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज था। तो in fact I think there was a lot of learning which we ourselves had to do a lot before even initiating one single project from the production house शाहजहां प्रोसेनियम। तो खुद बहुत सीखना पड़ा, गलतियां करते करते ये लगा कि अच्छा ये एक्सपीरियंस का ग्राफ आपने डेवलप किया कि यार ये जो चीज है वो ऐसे होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए। लॉट ऑफ थिंग इन टर्म्स ऑफ जो पहले हमारी कास्टिंग होती थी, ऑडिशंस लिए जाते तो फिजिकली हम ऑफिसेस जाके दे रहे हैं, हम बुलवा रहे हैं आर्टिस्ट को।
अभी हम व्हाट्सएप पे मंगा रहे हैं। तो अभी हमें Wow. सही से अंदाजा नहीं है कि यार इस कॉर्पोरेट फिल्म के लिए अगर इस एक्टर को आपने कास्ट करना है तो उसके चेहरे पे जो लाइट है वो एक्चुअली गोरा है या सांवला है। Right. ये बहुत बड़े चैलेंजेस थे जो टेक्नोलॉजी, पार्टली योर लिटिल योर डाउटफुल एटीट्यूड, योर ओन मिसगिविंग्स एंड योर लैक ऑफ नॉलेज अबाउट हाउ एग्जैक्टली वुड फंक्शन इन दिस ऑनलाइन मीडियम। True. तो ये करके फिर कभी कभी ऐसा भी बड़ा फनी इंसिडेंट हुए कि एक आर्टिस्ट ने बहुत अच्छा सा ऑडिशन बना के भेजा, क्योंकि हाँ. कुछ कुछ जो है आपको अपने पास ऑडिशंस रखते हैं, आप देख रहे हैं, और आपको यकीन नहीं हुआ कि ये आर्टिस्ट जो है इतना सुंदर दिख सकता है। क्या बात है. तो Yeah. आप उससे ये कह रहे हैं कि ऑडिशन में करता तो सब बहुत अच्छा है, एक हाँ. काम करो, जरा सा ना धूप में खड़े होके ये बगैर किसी लाइट या मेकअप के दो जो है, किसी से कहना सेल्फी मत लेना, किसी परिवार वाले से कहना कि तुम्हारी तस्वीरें हमें व्हाट्सएप कर। सही है. तो मिलाया, ऐसे देखा, Okay. कभी तो तुम सही थे, कभी तो तुम गलत थे, यही में डिसीजन लो। तो Yeah. ये बहुत फनी से इंसिडेंट्स रहे, ऑनलाइन चीजों ने बहुत सिखाया। हाँ, ये मैं मानता हूँ विवेक सर कि अगर इफ दिस वाज द केस दैट दिस प्रोडक्शन हाउस वुड हैव गॉटन ओपन्ड Yeah. or Yeah. would have gotten inaugurated pre-pandemic era, in the sense before pandemic or after pandemic, at least Right. was not during the pandemic, we would have certainly done much more the kind of stuff we have done today as compared to the kind of stuff we have done today, क्योंकि शुरुआत खुद बहुत चीजों को सीखने में, लर्निंग करने में गया Yeah. था। Yeah. शाहजहांपुर प्रोसीनिंग्स बेसिकली कास्टिंग एजेंसी है, और इस प्रोडक्शन हाउस के अंतर्गत हम एक्टर्स के लिए कोहर्ट डेवलप कर रहे हैं। वी ट्राइंग टू डेवलप सम काइंड ऑफ कम्युनिटी फॉर एस्पायरिंग Wow. Wow. That's really aspiring nice. writers, despite whatever background you come from. You Very could be a nice. you could be a well-versed CEO of a company also, or you could be just, let's say, a newly young professional in a company as well. Pressure. Yeah. Yeah. आपका काम ही और आपकी जो आजादी है, Yeah. वो एक लिबरल डेमोक्रेटिक, एक जमहूरियत से भरा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको हम सिखाएं तो ही, इन द सेंस एक्टर्स को ट्रेन करें, राइटर्स को ट्रेन करें, बट नॉट ओनली ट्रेनिंग पार्ट बट आल्सो टू जनरेट सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट। वाओ, क्योंकि मतलब पूरा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश हो रही है कि जहां पर एंट्री है, डेवलपमेंट है, एंड देन एम्प्लॉयमेंट भी है। सो दैट्स अमेजिंग, मतलब पूरा एक ट्रायंगल जो है वो आप कंप्लीट कर रहे हो। दैट इज रियली रियली सो नाइस ऑफ यू, एंड इवन टू लाइक द पीपल हु हैव जॉइंड द हैंड्स टुगेदर विद यू। और आपकी तो मतलब मतलब हिंदी भी बहुत अच्छी है। अभी जैसे मैं देख रहा था अनवरत, पता नहीं ये वर्ड मैंने कब सुना होगा, लेकिन बहुत अच्छी है। इंग्लिश भी बहुत अच्छी है, नो डाउट। मतलब जिस हिसाब से आप उर्दू के भी बीच बीच में जो आप स्प्रिंकलिंग कर रहे थे वो भी बहुत अच्छा है। तो आई थिंक लाइक रियली अ ग्रेट अप्रिशिएशन ऑन दैट लाइन। एंड लेट मी अंडरस्टैंड फ्रॉम द ऑडियंस, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू नो अबाउट अ वर्ड कॉल्ड प्रेसीनियम, इफ आई एम स्पेलिंग इट राइट। मतलब इफ मेरा प्रोनाउंसिएशन सही है, प्रेसीनियम, right? So let me see from the audience, how many of you want to know? Just type WTK in the comment box. Let me see how many of you want to know about this word. एटलीस्ट एक चीज आपको समझ में आएगी कि आज एक आपने नया वर्ड सीखा, और उस वर्ड में क्या सीखा। एनी वन ऑफ यू जस्ट पुट ऑन द चैट so that it can be very comfortable, and let me see how many of you want to know about that. So Arvind want to know, Mukesh want to know, Sailesh want to know. Okay, we have got again Sunil want to know, Rahul Kumar want to know. Okay, who else want to know? जो लिखेगा सिर्फ वही उसी को समझ में आएगा। Prashant C want to know. Everyone just type WTK in the comment box, so that like you should not get mesmerized completely. Uttam Chand Lalji want to know. Right, everyone, I want all of you to just type on the chat box. Shivani Chawla, amazing, great. Sanjay, okay. Sugatha Nair, Sukumaran, amazing. So now the stage is yours, Manilji. Everyone wants to know proscenium, a very unique word. देखिए, इस वर्ड पे जाने से पहले, इट्स डेफिनेटली, आई मीन ऑफ कोर्स इंडीड द यूनिकनेस अटैच्ड टू दिस वर्ड ऑफ कोर्स इज इट्स ओन ब्यूटी, एड्स एंड एक्सेंचुएट्स दिस ब्राइटनेस आल्सो। या बट दुनिया में हर चीज के दो पहलू होते हैं विवेक सर। क्या बात है। एक वो जो आप जानना चाहते हैं, और एक वो जो आपको जानना चाहिए। क्या बात है। तो मैंने एनएसडी से, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, थिएटर अप्रिसिएशन कोर्स किया है, व्हिच इज नथिंग टू डू विद एक्टिंग पर से। आई एम नॉट अ ट्रेन्ड एक्टर. Okay. But yes, so it's about the study of theatre, where you're given classes for 8 hours every day and 10 hours every day by prolific teachers and all those professors.
who have invested a large proportion of their life into theater only. तो वो Yeah. जितना बता देते हैं वो कम होता है हमारे लिए, और Correct. 8 घंटे यूं बीतते हैं कि पता नहीं लगता। खैर, Right. ये बात बहुत पुरानी है। आपको गूगल पे मुख्तलिफ हवालों से आपको बहुत रिसोर्सेज से आपको पता लगेगा प्रोसेनियम क्या है, बट आज के जनरेशन के लिए मैं थोड़ा सा बता दूं, not that because I am very ancient or very archaic, I also belong to this generation, but आज के मतलब थोड़ा सा इसको थोड़ा लूप थोड़ा अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा। ये जो आजकल हम सिनेमा हॉल्स देखते हैं, ये प्रोसेनियम स्टेज का एक बहुत मॉडर्नाइज्ड वर्जन है। And I'm Wow. not saying that if we talk about a proscenium theater, it would talk only about ancient scriptures and those Shakespearean plays and everything. No, a proscenium theater can also be very, very contemporary, very modern also. Right. But the word proscenium essentially means that any stage theater which has an arch, Right. यूं करके बना होता था, जो पुराने मेहराबदार हमारे जो घर होते थे, Correct. उनमें आप देखते होंगे एक बहुत बड़ी सी जायगेंटिक बिल्डिंग है जिसमें आप जा रहे हैं, अकूस्टिक्स जिसके बहुत स्ट्रॉन्ग है, आर्टिस्ट की आवाज जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं करती है, एको नहीं करती है, बाउंस नहीं करती है, और 3 तरफ से उसकी दीवारें बंद हैं, और चौथी दीवार आप खुद हैं जो आप दर्शक हैं, यानी फोर्थ वॉल इज ऑफ ऑडियंस। Yeah. So most of the theater, stage theater, has always been proscenium. If we keep apart the Nukkad Natak or the we see all these kinds of public performances, जैसे elections वगैरह में आप देखते होंगे, या otherwise to garner a lot of public attention about any political or social issue, नुक्कड़ करते हैं। हालांकि स्टेज थिएटर में भी उस तरीके से आप you attract the audience's attention, but stage theater more so is about fanfare, gigantism, machismo, जो आपका खुद की जो अपनी वरीयता है, वैनिटी है, नॉवेल्टी है, उसके बारे में। तो इसीलिए उसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता था कि अगर आप कोई ऐसी परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो वो अपने मैक्सिमाइज जो इन द सेंस आपका जो सबसे बेहतरीन रूप है, द बेस्ट वर्जन ऑफ योर ओन कैरेक्टर शुड कम आउट, द लाइटिंग, द साउंड, द विंग्स, एवरीथिंग। So I think proscenium theater is practically everything which you have just seen in terms of or in the name of theater till now. Wow. But if you go literally बिब्लिकली अगर आप जाओगे, मतलब कि नहीं मुझे साहब वही देखना है, तो भाई वो है जिसमें 3 दीवारें हैं, एक आर्च बना हुआ है, चौथी दीवार आप खुद है, और जिसमें आपको देखने में मजा आ रहा है। और प्रोसेनियम थिएटर की खास बात ये भी थी कि जैसे आप गेटी थिएटर वगैरह में आप जाएंगे शिमला में, तो आप देखेंगे कि एंड इवन इफ यू गो टू लेट्स से द यूनाइटेड किंगडम, सो यू सी अ लॉट ऑफ फेस्टिवल्स, फ्रिंज फेस्टिवल्स होते हैं वगैरह, दे आर हैपनिंग इन वेरी बिग ऑडिटोरियम्स, but essentially they all are proscenium theater. And the nearest thing which you can see, I would say, which is very close to being a proscenium theater is, I think, Getty Theatre in Shimla. If anybody has seen that, Mall Road पे है। Okay. उसके अलावा कुछ कुछ proscenium theater है, but अब जैसे LTG है, मंडी हाउस वगैरह में है, बॉम्बे में आप देखेंगे, अब बहुत स्वरूप बदल दिया गया है। Okay. अब आदमी की खुद की कलाकारी की जगह मशीनों ने ले ली। तो एक्चुअल फॉर्म में एक प्रोसेनियम थिएटर ढूंढ लेना अभी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो कुछ भी आप देखते हैं दैट इज जस्ट इमिनेटेड एंड केम आउट फ्रॉम प्रोसेनियम। द वेरी फैक्ट दैट द वर्ड प्रोसेनियम्स इज देयर इन द नेम ऑफ अ प्रोडक्शन हाउस बिकॉज़ ऑफ सिंपल रीजन, लाइक आई मेंशन्ड बिफोर, हम जितने चारों लोग हैं जिनका मैंने नाम लिया, मैं खुद, मनिल मयंक मिश्रा, एक स्मृति जी हैं हमारे साथ, नेहा जी हैं, आशीष जी हैं, जमीला जी हैं, ये सब लोग कहीं ना कहीं थिएटर से जुड़े रहे। जमीला जी इनफैक्ट अभी क्रूज परफॉर्म करके आई। अच्छा। तो वहां पे पूरा आपको प्रोसेनियम एक आपको एक टच मिल जाएगा करके। तो चीज ये है कि ये जो बैकग्राउंड था, ये शर्त थी कि साथ काम करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो हमारा पुराना जो अतीत है, जो माजी है, जो बीता हुआ है, वो कहीं ना कहीं हमारे इस नाम में जो है वो उसकी एक छवि होनी चाहिए, वो परिलक्षित होना चाहिए। इट शुड बी समवेयर डाउन द लाइन, शुड बी रिफ्लेक्टेड इन द नेम ऑफ इट। शाहजहांपुर, लाइक आई टोल्ड यू विवेक जी, has been my hometown. Like my roots go back to Shahjahanpur. It's been like years and ages I've been to Shahjahanpur. हालांकि लेकिन वो मेरी, because I'm the founder of this production house, so I had that little liberty, or maybe you can say that could be some kind of a privilege I had. भाई एक नाम मैं अपना रखूंगा, एक नाम तुम अपना ऐसे करके मैंने कॉन्फ्रेंस, ये जैसे एक नई नवेली जो नहीं होते हैं, जिनकी नई जोड़े जिनकी शादी हुई होती है, राइट, तो उनके जब बेबीज या बच्चे होते हैं तो वो भाई ये मेरी तरफ से नाम, ये मेरे, इस तरीके से हंसी मजाक में एक चीज शुरू हुई थी। करेक्ट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आई थिंक या, और कहते हैं ना कि मतलब
जैसे आप कदम आगे बढ़ाते हो, धीरे धीरे रास्ते निकलते जाते हैं, रास्तों में मतलब लोग मिलते जाते हैं, सपोर्ट होते जाते हैं, कारवां बन जाता है। तो मतलब वी आर वेरी फॉर्चुनेट, एंड पर्टिकुलरली आई माई सेल्फ इज वेरी फॉर्चुनेट कि अभी 2 दिन पहले मेरे ख्याल से वर्ल्ड थिएटर डे हम लोगों ने, लाइक वी एक्सपीरियंस दैट, राइट? 27 मार्च को जी। राइट, तो मतलब एक कब था? 27 मार्च। जी जी 27 मार्च 27 को मार्च को, राइट? जी। मतलब वर्ल्ड थिएटर डे था, और आज हम लोग आपसे बात कर रहे हैं, इतना कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, इतना कुछ अरे जानने के लिए मिल रहा है। नहीं, ये मतलब बहुत बड़ी चीज है। और इस तरीके के जो डिस्कशंस होते हैं बहुत कम होते हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है, हर कोई बिजी होता है, हर कोई अपने अपने बिजनेस में है, हर कोई अपनी, जैसे आपने बताया ना कि बाकी 4 लोग बड़े अपने अपने अपनी धुन में है। तो एक तो तो वो ऐसा कभी ऐसा मुझे लगता है, हालांकि नहीं उनके मेरे पास नहीं ज्यादा ज्यादा फोन आ जाते हैं, मुझे लगता है यार ये मुझसे कितने ज्यादा मसरूफ है, तुम क्या कर रहे हो? मैंने चलो इन्हीं के साथ मिलके जी जी जिंदगी में सब लोग बहुत कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं, दैट्स अ गुड थिंग। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। विवेक सर, आई थिंक दैट एवरीबॉडी ऑन दिस प्लैनेट, ऑन दिस यूनिवर्स हैज कम ओनली फॉर वन बेसिक पर्पस, यस, एंड दैट इज टू ऐड टू द ब्यूटी ऑफ दिस यूनिवर्स। आप साइंटिस्ट एग्जैक्टली, हो सकते हैं, आप अच्छे कॉर्पोरेट हो सकते हैं, आप अच्छे स्कल्प्टर हो सकते हैं, घास बिल्कुल, काटने वाले कोई भी हो सकते हैं, but when करेक्ट, you actually do something, no, add on to this beauty by या, already existing creation plus one, and that is plus one is your creation, I think you have done your करेक्ट, job। वो चीज राइट, है, अच्छे या। लेखक हो सकते हैं। तो ये जी, आपको मैं थोड़ा सा, I'm so sorry that I cut you short here, but that is what I feel about it, नो नो yeah। नो, that's absolutely there। और आई थिंक लाइक उसी से जो कहते हैं ना कि जो उसकी जो महानता है वो निकल के आती है कि आप उस यूनिवर्स में कितना सपोर्ट कर सकते हो, राइट? नहीं तो जीवन तो हर एक के साथ है, आना और जाना लगा हुआ है, लेकिन द बेस्ट पार्ट इज दैट कि आप उसमें कितना वैल्यू एडिशन करते हो, और True, वैल्यू एडिशन अपने हिसाब से करते हो। जी मतलब एक एक स्वच्छंद रूप से, एक स्वतंत्र तरीके से अगर आप कर पाते हो, नथिंग कैन एक्चुअली कंपेयर दैट, so that is something which always a passion, which comes out। तो एक जो जर्नी होती है उसमें बहुत सारे उतार और चढ़ाव होते हैं। जैसा हम लोगों ने सुना था कि श्री अमिताभ बच्चन जी को भी बहुत अप्स एंड डाउन्स का मौका मिला था, देखने के लिए मिला था। और मेरे ख्याल से, यू कैन करेक्ट मी ऑल्सो, मेरे ख्याल से 7 हिंदुस्तानी उनकी एक पहली पिक्चर थी जहां पर उनको जी वो ब्रेक मिला था। वो जी जी मतलब काफी मायूस होकर के जा रहे थे, जहां मुंबई से वापस इलाहाबाद आ रहे थे, जहां तक जी मैंने उनके बारे में पढ़ा और सुना है। तो मतलब काफी अप्स एंड डाउन है। उसके बाद फिर अगर आप देखेंगे तो केबीसी के पहले भी बिग बी, एक जो उनकी ऑडियो थी, एबीसीएल थी, जो काफी अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड उन्होंने स्टार्ट किया, फिर वो डाउन हुई। तो इस तरीके से काफी मतलब जर्नी बहुत बहुत तरीके से, कहते हैं ना कि फूलों की सेज वाली नहीं होती है। तो बीच बीच में काफी कांटे भी आते हैं, काफी ये भी आते हैं। और आज तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट वी आर मीटिंग यू। तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं कि किस तरीके के चैलेंजेस आए जब आपने स्टार्ट किया, और आई मीन सपोर्ट की तरफ बाद में आएंगे, लेकिन पहले मतलब किस तरीके के चैलेंजेस आए, और कहते हैं ना कि हिम्मत मर्द मदद खुदा, कि मैं कैसे आगे बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। तो थोड़ा सा उसके बारे में। Not that I have achieved a lot of great things in my life, Vivek sir, and at the cost of sounding too, too fancy and too humble and all. But I still feel that I still have a long way to go and to cover. या Yes, but in terms of the production house, I would see the kind of challenges. एक तो हमारे समाज में there's this proper understanding, or let's say to a large extent it is a misunderstanding, that professions and vocations like acting and writing are seen with a lot of glorification. या The moment you say that you would want to become an actor, oh my god, a lot of people would frown upon you, a lot of people would ask you very dissimilar questions, and I mean you would be just cascaded or classified in a different manner altogether. अब ये राइट, हमारे जैसा नहीं रहा, ये एलियन हो गया। या करेक्ट करेक्ट, ऐसा नहीं है, लोग बॉम्बे में लोग बैंक में काम कर रहे हैं और नाटक भी कर रहे हैं। प्रतीक बिल्कुल, गांधी काम करते थे जब शुरुआत में उन्होंने थिएटर का अपना जो जर्नी था शुरू किया था, स्कैम के जो लीड प्रिंसिपल एक्टर हैं। यस यस, तो आपको बस तारतम्यता बनानी होती है, यू नीड टू एडजस्ट एवरीथिंग अकॉर्डिंगली। देन या द डिबेट बिटवीन पैशन एंड प्रोफेशन, या fortunate are those people who have the same passion and profession, or at least their passion is, or their profession is an extension of their passion। राइट, जैसे साहब मुझे गिटार बजाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं गिटार खरीद के बजा नहीं सकता, लेकिन मैं गिटार की दुकान पे मैकेनिक हूँ, तो मेरा कहीं ना कहीं एक पैशन फुलफिल हो रहा है, मैं बजा के कनेक्ट हो देख रहे हैं, लेता हूँ। तो बिल्कुल, अगर ऐसा है तो बहुत फॉर्चुनेट है आप, ऊपर वाले की आपके ऊपर नेमत है, मेहर है। दूसरा, challenges in terms of what I would say
to make people, and especially the parents, set of parents, to understand that it's not merely the financial support, but it's actually the moral support which you would give your children, especially Yeah. those people who are basically in Bombay for years and are trying to make their mark, और जो अपने सपने Yeah. पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हवा पानी और रोटी के बिना आप जीवित रह सकते हैं, मोहब्बत जी, के बिना नहीं। correct. तो जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत जिनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत है, Correct. बट अंदर से टूटे हुए हैं। Yes. और वो इस वजह से है, मुझे लगता है शायद क्योंकि उनके पीठ पे कोई हाथ रख के ये कहने वाला नहीं है कि कुछ भी करते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। Yes. Yeah. तो ये जी, तो एक एक ये चैलेंज था पेरेंट्स को ये समझाना दैट प्लीज बी मॉरली एंड एथिकली एंड इमोशनली आल्सो बी प्रेजेंट विद योर चिल्ड्रन Right. इफ दे हैव मेड अप द माइंड टू डू समथिंग इन दिस इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, Yeah. be it writing, acting, or be for that matter any kind of job. Correct. To um, एक जो समाज में अवधारणा है that there's not a clear demarcation between a hero and an actor. This is one of the major. I जी, agree. जी, Agree. Yeah. Correct. Correct. जी। तो Yeah. अगर मैं अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में बहुत खूबसूरत हूँ, मेरा गौर वर्ण है, अगर मैं बहुत सुंदर दिखता हूँ, मेरी हाइट अच्छी है, और मैं कपड़े वपड़े जरा ठीक ठाक पहन लेता हूँ, सीटी वीटी बजा लेता हूँ बाइक वाइक में, तो मुझे लोग कहते हैं अरे हीरो जा रहा है। हीरो जा रहा है। अब वो जी, वो सोशल मिसनोमर इतना ज्यादा होता है कि उसको लगता है कि दैट इज द ओनली क्वालिफिकेशन यू नीड टू बिकम एन एक्टर इन हिंदी फिल्म। Right. So one should always keep in mind that a hero may or may not become an actor, but an actor can always become a hero. Yeah. Yeah. It depends upon the character of the role you're getting, जो आपको Wow. मौका मिलेगा। Very nice. So just give me 30 seconds. Somebody has come with my coffee. Yeah, Just give me 30 sure. So just want to know that how many of you are able to resonate the challenge, right? Just type in the comment box that if you are able to resonate the challenges, कि जब हम स्टार्ट करते हैं तो जरूर कोई ना कोई कष्ट आते हैं, कोई ना कोई हमारे साथ में मुश्किलात आते हैं, और जिसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। तो या कमिंग बैक टू मनिल जी, टू योर जर्नी। या राइट। तो एक तो मैं अपनी जर्नी के बारे में, ऑफ कोर्स आपने मुझे मौका दिया, आई एम रियली थैंकफुल टू यू सर, आई विल टॉक अबाउट दैट आल्सो, बट बिफोर दैट वेरी इंपॉर्टेंटली वुड वांट टू टॉक अबाउट द चैलेंजेस व्हिच माय प्रोडक्शन हाउस हैज फेस्ड। या वेरी मच, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? That society or that cohort between actors and writers. Then करेक्ट। this is one. तो हर इंसान को खासतौर से एक्टिंग और अभिनय के पर्सपेक्टिव से समझना चाहिए that looking good could be an added advantage. It is not the only qualification of being an actor. A successive and a progressive training from a good mentor is very important. Yes, yeah. आप एक अच्छा मेंटोर जो है वो आपको एक्टर कोई किसी को बना नहीं सकता। करेक्ट। Acting, अभिनय एक ऐसी चीज है, for that matter any skill you talk about, it can never be taught but it can always be learned. राइट। तो एक शख्स उसको एक लाइन ऑफ थॉट देके कैसे इस तरीके से मोल्ड किया जाए कि वो पूरी जिंदगी एक स्टूडेंट ऑफ स्कूल ऑफ सिनेमा बना रहे, ताकि उसकी एक्टिंग इजाफत होती रहे, बढ़ोतरी होती रहे। करेक्ट। ये एक दौर का काम है। प्लस बहुत सारा चाइल्डहुड में ट्रबल्स रही, जिनकी वजह से कई ऐसी चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरी उंगली में दर्द ना हो तो मुझे पता ही नहीं लगेगा कि मेरी हड्डी ठीक है कि नहीं। सही बात। तो वो दर्द कोशिश है इस चीज का पैदा करने की दैट सी सिम्प्टोमेटिकली यू हैव अ प्रॉब्लम जस्ट बिकॉज यू नेवर टेस्टेड इट फ्रॉम योर चाइल्डहुड, एग्री। which is why you do not know it's creating a lot of problems in your future also, in your own individuality also, personality also. Absolutely. तो ये realization कराना that what is the neutrality of an individual, therefore to develop a character. For example, जैसे मुझे विवेक सर को कभी fortunately निभाने का मौका मिले, तो अगर मेरे खुद के ही पर्सनालिटी में बहुत सारे impediments और obstruction होंगे तो मुझे आपको निभाने में दिक्कत होगी, जो एक्टर का प्राइमरी जॉब है किसी एक चरित्र को निभाना। तो मेरा न्यूट्रलाइजेशन जो है वो एक गुड मेंटोर की संगत में या उसके संरक्षण में, उसकी सरपरस्ती में हो सकता है। दैट इज वन। 3, कनेक्ट विद द ऑडियंस। कनेक्ट विद द ऑडियंस क्या चीज होती है सर, कि जब हम परफॉर्म कर रहे होते हैं बहुत सारा, एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज साइकोलॉजिकल, आई एम नॉट बेसिकली ब्लेमिंग एनी एक्टर फॉर दैट। क्या चीज होती है दैट वी गेट इनटू आवर ओन वैनिटी। ओह माय गॉड, आई एम द ओनली वन ऑन स्टेज, ओह माय गॉड, आई एम द ओनली वन ऑन कैमरा। अहम ब्रह्मास्मि, मैं अहम ब्रह्मा। तो आप क्या करते हैं, यू टेंड टू नेगेट, टेंड टू बिकम अ लिटिल इंडिफरेंट टू द टाइम एंड स्पेस अराउंड यू। जबकि अगर आप किसी भी एक एक्टिंग की या एक स्किल की विधा को आप उठा के देखेंगे,
It essentially talks about your connection between a time and space. So if you're my co-actor, let's say we're talking, right, and we're just recording this entire scenario as a scene or as a shot, let's say for a film. Correct. So the basic idea is that I know, because we all have read we both have read the script. So मुझे पता है कि आपके बाद what is my line, and you also know that what is your cue, what is your cue in the sense when exactly your line would begin. लेकिन audience को नहीं पता है. Yes, yeah, Audience के लिए conversation होना चाहिए. absolutely. So despite the fact I know that I have to basically enact a certain character in front of you, I would still listen to your line like that as if I'm listening it for the first time. Yeah. वहां पे मैंने आपको अपनी जिंदगी में वेटेज देना शुरू कर दिया आपके कैरेक्टर. Exactly. ये एक मुझे नए एक्टर्स में फर्क पता लगता है कि जैसे ही जरा सा उनको अपने कैरेक्टर पे कमांड होना शुरू हो जाता है, वो डिसोसिएट हो जाते हैं, जबकि अच्छा. एक्चुअली एक्टिंग इस चीज का नाम नहीं. Okay. ये एक मेंटोर का जो मुझे चैलेंज लगा. मैक्रोस्कोपिकली अगर मैं सोसाइटली इस चीज की बात करूं, तो मैंने आपको बताया कि एक तो मुझे ये लगा कि देयर इज अ लॉट ऑफ गैप बिटवीन इमोशनल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट. एंड मोस्ट ऑफ द पीपल, चाहे वो बड़े भाई हो, बहन हो या पेरेंट्स हो, वो ये सोचते हैं कि फाइनेंशियल सपोर्ट इज एवरीथिंग. ओके, इट इज. मतलब ऐसा पैसा जिंदगी में बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है. सब कुछ नहीं है, बिल्कुल जी. तो हुआ ये कि उनको ये भी बताना पड़ा कि मॉरल सपोर्ट दो, चीजें बदलेंगी. राइट. इमोशनल सपोर्ट दो. और एक ये मिसअंडरस्टैंडिंग दैट हीरो एंड एक्टर are one and the same thing. They are interchangeable. No, that is not the case. It's not. Yeah. Third up, lack of good training amongst actors. That is one thing. Fourth, sir, in terms of script writing, there are many good writers in a country. Correct. But what challenging I found was in all these writers, they don't want to break their realm. Right. They just want to write what they know about. Yeah. तो और ये बहुत ज्यादा जिम्मेदारी प्रोड्यूसर्स की भी है, प्रोडक्शन हाउसेस की भी है. Correct. अगर एक बंबई का आदमी बिहार के ऊपर एक स्टोरी लिखना चाहता है या कम से कम अटेम्प्ट करना चाहता है, तो उसको वो वेटेज या एनकरेजमेंट नहीं दिया जाएगा बनिस्बत उसके जो खुद एक बिहार से एक आदमी आया और उसने कहा कि देखिए हमारी कहानी हमारे गाँव की कहानी. सही बात है. करेक्ट. तो ये इससे क्या चीज हुई, जो एक चीज होती है ना सार्वभौमिकता, जो मतलब यू नो द काइंड ऑफ आई वुड से कि यार राइटिंग इज बेसिकली उसके ऊपर किसी की मिल्कियत नहीं है. आप भी उतनी खूबसूरत मेरे गांव के बारे में लिख सकते हैं जितनी मैं आपके गांव के बारे में, आपके शहर के बारे में. इस चीज डेफिनेशन है सर, वो खराब हुई है इस चीज से, बिकॉज व्हेन यू आर नॉट गेटिंग इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क, राइट, एंड यू बी बेसिकली बीइंग अप्रिशिएटेड फॉर व्हाट यू ऑलरेडी नो अबाउट, many of us seldom would want to break that comfort level because you're getting good secured money, you're getting good name as a writer. So you would definitely not, at least in the initial years of your profession, you would not want to break that particular mirage. और आप ऐसा नहीं लिखना चाहेंगे नहीं यार कुछ भी हो जाए, मैं अपने फ्लैट का रेंट दे पाऊं ना दे पाऊं, लेकिन अब मैं कहानी वो लिखूंगा जो मुझे बिल्कुल नहीं आता. ऐसा बहुत मुश्किल से होता है. तो हमें एक ऐसा निजाम बनाना पड़ेगा. और ये मैं बहुत यूटोपियन बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए सब लोगों की सहभागिता बहुत जरूरी है. सहभागिता जरूरी है. It is very important for everybody to be on the same page for this, where everybody is treated, at least in terms of writing, treated at the same level. अब क्या हुआ कि जैसे बहुत जरूरी ये हो जाता है, कोई बड़े मेरे ख्याल है शायर, ये क्या मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, आई एम नॉट क्लियर अबाउट, उन्होंने कहा 100 ग्राम पढ़ो तो 10 ग्राम लिखो. अच्छा, ओके जी. तो पहले के जमाने में हम लोग पोइट्री वगैरह करा करते थे. मुझे अपने स्कूल डेज का याद है, 1.5-2 साल हम मुशायरों में सिर्फ सुनने जाते थे. ओके. और ये बिल्कुल हिम्मत नहीं होती थी या बिल्कुल इस तरीके का कोई अटेम्प्ट या कोशिश या एक्सपेक्टेशन भी होती थी कि भाई हम भी अपना एक शेर या एक मिसरा पढ़ने किसी बड़े शायर के साथ. 2-2.5 साल सिर्फ रिसर्च और गाली और डांट खाने के लिए होते थे. तो एक चैलेंज मुझे ये लगता है कि आजकल के राइटर्स में होमवर्क की बहुत कमी है. काम कहीं नहीं जा रहा है आपका, जो आप जिस तरीके से प्रोफेशनली आप एलिवेट कर सकते हैं वो कहीं नहीं जा रहा है. आपकी अपॉर्चुनिटीज कहीं नहीं जा रही हैं. तो जल्दबाजी किस बात की? और जिस चीज पे रिसर्च होके अच्छी स्क्रिप्ट्स लिखी गई, बॉक्स ऑफिस पे उनको क्या सफलता मिली, दैट इज none of my concerns also, and then plus it is not in my hands also. If I appreciate that film, I would definitely watch it. I can watch it thrice, 4 times, 5 times, but I cannot become whole India and kind of appreciate it, right? That's technically impossible for me as a. लेकिन वो कहीं ना कहीं सराही जरूर गई, जिन पे रिसर्च करके और पूरा मेथड से
या Right. जिसपे मैं कहूंगा एक चीज होती है स्क्रिप्ट राइटिंग में, जब हम लोग स्क्रिप्ट राइटिंग की क्लासेस देते हैं तो एक चीज हम करते हैं, देयर इज वन थिंग व्हिच इज नोन एज राइटिंग, देयर इज Right. वन एसेंशियल थिंग एंड मोर इंपॉर्टेंट देन राइटिंग इज प्री राइटिंग, Rewriting. व्हाट Okay. यू आर राइटिंग बिफोर राइटिंग, व्हाट Yeah. एग्जैक्टली इज द Yeah. थॉट प्रोसेस एज अ स्क्रिप्ट राइटर। और Wow. आप Wow. यकीन जानिए जितना आप ज्यादा राइटिंग से पहले प्री राइटिंग या आप अपनी स्क्रिप्ट से पहले लिख लेते हैं या समझ लेते हैं, आपको उतना ही कम वक्त लगता है अपनी स्क्रिप्ट को बाउंड करने में या उसको एक प्रॉपर स्क्रीन प्ले की शक्ल देने में या इख्तियार करने में। राइट, आई मीन ज्यादातर 90% यू आर पुटिंग इन द प्लानिंग। तो जब आप प्लानिंग में उतना ज्यादा समय दे रहे हैं तो एक जी तरीके से ये दीवन मतलब आपका जो मेंटल लेवल पे आप प्लानिंग कर ले रहे हैं, जी तो ऑटोमेटिकली आपका एग्जीक्यूशन जो है वो काफी छोटा रह जाता है, जी क्योंकि जी आपने जी ऑलरेडी सारी चीजें प्लान कर ली होती हैं। true। या सो दिस ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि जहां पर चैलेंजेस होते हैं वहां पे सपोर्ट भी आ जाते हैं। कहते हैं ना कि खुदा अगर एक दरवाजा बंद करता है तो सात खोल भी देता है। तो उसी जी तरीके जी से जैसे अब आप तो मतलब आई मीन काफी फॉर्चुनेट रहे कि चार लोग और मिल गए और रास्ता एकदम थोड़ा सा आगे बढ़ा। लेकिन मतलब मेजर सपोर्ट्स क्या थे कंसिडरिंग टुवर्ड द बिजनेस प्रोस्पेक्टिव, कि मतलब जैसे ना। या मुझे फेयर एंड लवली का एक एड याद आता है, पुराना या एड है, ऐसा जिंदगी में कभी नहीं हुआ। ऐसा लगता है इसीलिए वो टेलीविजन कमर्शियल है, और जो हकीकत में जिंदगी है वो बिल्कुल अलग है। करेक्ट। हकीकत की जिंदगी अलग है। ऐसा कभी किसी ने नहीं कहा कि ये लो मेरा विजिटिंग कार्ड, कल मुझे 10 बजे ऑफिस में आके मिलना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ऐसा वाह, कभी नहीं हुआ, क्या बात और है। ऐसा होना भी नहीं चाहिए सर। होना नहीं चाहिए, सही बात है। जी, या मुझे इसलिए लगता है क्योंकि स्ट्रगल की अपनी एक खूबसूरती होती है, बिल्कुल। वो बहुत खूबसूरत चीज होती है। क्योंकि आपके लिए सफेद ताजमहल जो है या वो दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत है, बिल्कुल। लेकिन फर्ज करके चलिए कि उसके सामने जो शाहजहां एक तामीर करने जा रहे थे काले ताजमहल की, जिसकी आज भी नींव है, अगर वो अच्छा, ये काला ताजमहल बनाना चाहते थे। ये जी, अब ऐसा मतलब आई डोंट नो, दिस इज वेरी ओके it's an anecdote, or historically there are some people who even vouch for that also, but अच्छा, I believe in that fact। ओके ओके। क्योंकि या जितने भी आई मीन गाइड्स दैट हैं वो दैट दैट्स बताते हैं, समथिंग न्यू। या राइट। yes, so what I've heard from people and what I've हम्म seen also literally from my eyes, कि एक छोटी सी there's an elevation of मिट्टी का ढेर kind of thing, where it is said that Shahjahan wanted to create a black Taj Mahal, और वो इसलिए करना चाहते थे ताकि सफेद ताजमहल की खूबसूरती और ब्यूटीफाई, क्या तो बात है। कंपैरिजन एक बना पाए, एक ओहो, तुलनात्मक विकास कर ऑसम पाए। ऑसम। अभी ओके। आपके लिए इट इज जस्ट वन सिंगल इंडिपेंडेंट insignia of love and romance and everything, or करेक्ट। maybe something which is one of the seven wonders of the world, बट या फर्ज करिए कि वो एक काला ताजमहल बन जाता, तो आप देख रहे हो तो भाई क्या चीज बना गए शाहजहां। वो सही वाव बात जो है। है ना, वो हर इंसान करेक्ट के, तो करेक्ट करेक्ट। खूबसूरती स्ट्रगल में बहुत है। और इसी तरह जब आप स्ट्रगल करके कोई चीज हासिल करते हैं, तो आपको उसकी खुशी, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, और उसके जितने भी लेयर्स हैं ना, आप या उनकी एक एक चीज का बहुत रस और स्वाद ले पाते सही बात है। हैं। जैसे या एक बहुत भूखे इंसान को एक मीठा रसगुल्ला 3 दिन के बाद दे दिया जाए, वो कभी नहीं चाहेगा वो रसगुल्ला खत्म हो, क्योंकि उसके पास उतना ही खाने को है। सही और है। एक शख्स को एक अच्छी भरी हुई थाली के बाद एज अ डिजर्ट कोई मीठी चीज दे दी जाए बाद में, राइट। तो ये हमारा जो एटीट्यूड है ना, वो या हैप्पीनेस के लिए, सक्सेस के लिए तब बदलता है व्हेन वी एक्चुअली हैव कम फ्रॉम अ लॉट ऑफ स्ट्रगल एंड बैकग्राउंड। करेक्ट। दैट बीइंग सेड, हैविंग सेड दैट, जैसा मैंने आपसे कहा कि कोई मिराकुलस कभी कुछ नहीं हुआ कि किसी ने कार्ड दे दिया हो और कहीं से कुछ मेरे पास आ गया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। राइट। बट इट वाज ऑलवेज पीपल हु वर largely from a very very unexpected background, या and it was very very mutual, I would say। just example क्या चीज होती है कि यार मुझे स्क्रिप्ट राइटिंग की क्लासेस लेनी है ऑनलाइन, और आप जो है वो ले लीजिए, या पेमेंट्स का पता नहीं, पैंडेमिक चल रहा है, बट आप जो कास्टिंग कर रहे हैं उसमें कुछ अच्छे एक्टर्स में दे दूंगा। ओके। तो इस तरीके से काफी हमारा जो काम है म्यूचुअली एज एन प्रोबोनो बेसिस पे, कि चलो यार मदद कर दो इसकी, या राइट ये चीज राइट। म्यूचुअली, आपको आज हमने मदद कर दी, कल हमने मदद कर दी, तो वो चीज। अब जैसे अभी एक फिल्म के लिए किसी ने मुझे, एक शॉर्ट फिल्म है, अच्छी फिल्म है, आर्ट फिल्म है, उसके लिए मुझे किसी ने अप्रोच किया, तो उन्होंने कहा था कि हमारे फाइनेंसर जो है वो आर्टिस्ट को बहुत ज्यादा पैसा नहीं दे पा रहे, लेकिन ये है कि हम आपको लीड दे देंगे उसको। मैंने ऑलराइट। स्क्रिप्ट पढ़ी, मुझे पसंद आया, सही तो है। मैंने कहा साहब कहानी बहुत अच्छी है, हम्म और क्योंकि मेरे अप्रोच में है जहाँ पे आपकी लोकेशन है, मैं ये फिल्म करना चाहूंगा। वेरी तो गुड। कभी कभी आपको जिंदगी में बहुत सब्जेक्टिव फैसले भी लेने पड़ते हैं, और ये सपोर्ट मैकेनिज्म हमारे हमारे लिए उसी तरफ से आया। बिकॉज आई टेल यू प्राइमरीली द रीजन इज, विवेक सर, हम्म आवर इंडस्ट्री इज नॉट वेरी ऑर्गेनाइज्ड। या
तो हम चाह के बिना किसी को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना के बता नहीं सकते हम क्या कर रहे हैं, आपको महसूस करना होगा, हमारे साथ वक्त बिताना होगा। राइट राइट तो राइट उस चीज से क्या हुआ कि देयर वर पीपल हु ऑलवेज वांटेड टू इन्वेस्ट, बट दे वांटेड टू अंडरस्टैंड, लेट्स से देयर इज वन टर्म लाइक in the corporate structure only, ROI, which I've just learned during this pandemic only, return of रिटर्न investment, ऑन इन्वेस्टमेंट return of investment, बड़े बड़े gigantic terms में इंट्रोड्यूस हुआ हूँ। और उसके बाद ये भी बताया कि वो बात तो ठीक है कि काम करना चाह रहे हो, लेकिन Right. करते क्या हो। करेक्ट तो अब या तो एक जवाब ये हो सकता है कि भाई हम सब कुछ करते हैं, या दूसरा जवाब ये भी था कि यार अगर एसेंशियली देखो तो वही सब कुछ कर रहे हैं जो आज तक होता है, कौन सा नया काम कर रहे हैं। या So राइट it was actually a challenge for us also to explain our work culture and the kind of line of domain, or the kind of industry we are into. Kyunki I would not say that this is the misfortune of film industry that it's a little disorganized. राइट There are some things which basically are the way they are. ट्रू वो है नहीं ऐसी, या तो उसमें आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि Correct. सब्जेक्टिव है। अब एक पेंटर है, वो अगर पेंटिंग बना रहा है तो आप ना मतलब कह सकते हैं कि भाई 3 दिन लोगे या 4 दिन, लेकिन अगर बस 5वां दिन ले लिया उसने तो इसकी गलती नहीं है, नहीं आया ख्याल, नहीं आया कि स्ट्रोक कहाँ मारे, ब्रश कैसे घुमाए। करेक्ट तो करेक्ट कुछ इंडस्ट्री, लाइन ऑफ इंडस्ट्री जो है वो ऐसी होती है कि जिसके साथ एक बहुत स्ट्रेट जैकेटेड अप्रोच हम रख नहीं सकते चाह के भी। तो ये राइट चैलेंज था कि हमें फंडिंग लेने में, जो हम्म अभी हमें बहुत सब्सटैंशियली मिली नहीं है, ओके और एक सपोर्ट मैकेनिज्म खड़ा करने में राइट दिक्कतें आई, ओके because not many of us unfortunately could understand our line of business. राइट राइट So that is, so most of the work has been done mutually या on basically on goodwill and all those things. या There have been times where you just have seen कि यार ठीक है ना, कुछ अच्छा ही होगा, चलो इसको ऐसे ही कर देते, करेक्ट तो ऐसा भी हुआ है। राइट No, Anticipate I think that's really awesome. और मतलब कहते हैं ना कि एक बार अगर आपने सोच लिया तो रास्ते बनते जाते हैं, लोग मिलते जाते हैं, कारवां आगे बढ़ जाता है, और फिर आपका जो थॉट प्रोसेस है वो फोर्टिफाई होने लगता है, मतलब सपोर्ट मिलने लगता है, लोगों को लगने लगता है कि चलो ठीक है, मतलब ये कुछ लीक से हट के कर रहे हैं। तो मतलब रेजिस्टेंस भी बहुत रहता है, नो डाउट। लोगों को पहले तो समझने में बड़ी समय लग जाता है कि आखिर ये कर क्या रहे हैं, करना क्या चाहते हो, राइट। वो जी 3 इडियट्स का वो डायलॉग है कि कहना क्या चाहते हो। तो आई जी थिंक जी दैट इज लाइक द थॉट प्रोसेस टू मोस्ट ऑफ द पीपल। सो नाउ लाइक द क्वेश्चन कम्स कि जो आपने ये प्लेटफॉर्म बिल्डअप किया राइट ड्यूरिंग द पेंडेमिक, और ये एक्टर्स राइटर्स को जो अपॉर्चुनिटी देने के लिए जो आपने पूरा एक मतलब इकोसिस्टम डेवलप किया, जो हम बात कर रहे थे कि 3 वे सपोर्ट है, यहाँ पर एंट्री भी है, यहाँ पर आपको डेवलपमेंट भी है, और यहाँ पर आपको फर्दर एम्प्लॉयमेंट या एम्पावरमेंट भी है, और एक एनवायरमेंट भी है। जो हैबिटेट वर्ड आपने बोला, बहुत बढ़िया वर्ड था वो। तो मतलब ये पूरे प्लेटफॉर्म की शुरुआत कैसे हुई, और ये कैसे मतलब एक सक्सेस की तरह से मैं कहूँ कि अगर एक आगे बढ़ा, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। सर देखिए, कोई भी अगर आपको इंडस्ट्री में काम का वादा करता है तो या मैं बहुत मतलब खुले मन से और सबके सामने विदाउट एनी इनहिबिशन आई एम टेलिंग यू ही इज राइट लाइंग टू यू। ओके However, there's a caveat to that. There's some kind of a disclaimer to that. If राइट he's not making exclusively on his own, या तो आप एक आर्टिस्ट हैं और मैं डायरेक्टर हूँ, सही है और मैं आपसे कहता हूँ कि विवेक सर मैं आपको काम दूंगा। बिल्कुल Since it's my film, I am या the finance. Let's say राइट I'm basically my production house is making that film. I can promise and guarantee that employment because that's my own venture. करेक्ट Let's say a teacher or anybody who trains you, if या they do not have their own casting agency or their own production house where they राइट are producing good stuff, where या they're producing some kind of a content, I राइट think any blatant vada or any kind of promise to any student is completely falsified. ओके तो the very fact, जब हमने ये देखा कि यार अगर आप aspiring actors को ट्रेन कर रहे हो राइट और aspiring writers को ट्रेन कर रहे हो, तो या उनको क्लोजर आप कैसे दोगे? ये बिल्कुल ठीक उसी तरह है, just like some half baked love story of today's times where everything is going good, लेकिन suddenly there's one fine morning there's a boy comes up to that girl and the girl comes up to that boy and say अब I am just unloving you. ओ ओके तो how does it matter? मतलब दूसरा आदमी अवाक है
क्या हुआ ये? क्या हुआ? तो एक्सप्लेनेशन तो दो, क्लोजर तो दो। सही बात है। तो चाहे उसकी कितनी भी गलती हो, बट क्लोजर दो। बिल्कुल नाटकों में बिल्कुल। आप देखेंगे हमेशा शेक्सपियर ट्रेजेडीज में जितनी भी आप देखेंगे, there's always a closure to despite the fact how immoral, how unethical, or how, I would say anti-social it is, but there's always a closure to everything, so that if there's one person sitting in the audience, या या कि अगर दिल में ये एक भूख है कि यार ये हुआ क्यों, तो उसकी भी भूख को, उसके भी क्रिएटिव इंस्टिंक्ट को शेक्सपियर ने सेटिस्फाई करने की कोशिश किया, या किसी अच्छे प्ले राइट ने। या करेक्ट। तो ये हमारा था कि यार अगर ट्रेन कर रहे हो तो वादा मत करो कि काम दिला सकते हो, लेकिन ये वादा जरूर करो कि कोशिश कर सकते हो। तो जैसा मैंने आपसे बोला कि अब मैं खुद एज अ राइटर, फॉर एग्जांपल, हम working on certain concepts. So what is in my hands is to pitch their stories. If they, let's say you have prepared one screenplay or something, so I have a couple of people who pitch stories to different OTT platforms. Now they also do not promise anything to you, exactly, but they are the only way by which you can reach out to right people at right places. yeah So that is something which we basically try to do if you have a good script, because right, a lot of writing agents are in my touch, my wow friends and wow colleagues and everything. तो right, कभी कभी हमारा डिस्कशन होता है कि भाई आजकल हम लोग किस स्क्रिप्ट्स की डिमांड कर रहे हैं, या कौन सा ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या कर रहा है। तो द काइंड ऑफ पूल और बैंक ऑफ एक्टर्स व्हिच वी क्रिएट, right उसमें right, से वो हमें कहानियों के साइनॉप्सिस भेजते रहते हैं, बाइबल भेजते रहते हैं, या yeah कुछ ना कुछ ऐसा भेजते रहते हैं जिससे हमें अंदाजा होता है अच्छा ये ऐसा लिख रहे हैं, आप इनसे कांटेक्ट कर लो। yes So yeah that way we're trying to create some kind of a writing agency also. So that is one way of giving vocation to writers. yeah Second up is me being a person who's a screenplay writer and trying to develop vocation and employment for my writing interns. right, तो अब जैसे कल को क्या होता था, आज जब से प्रोडक्शन हाउस नहीं था, तो मैं अपने कोई एक कॉन्सेप्ट पे डेवलप कर रहा हूँ, correct, तो मैं अपना खुद का डेवलप कर रहा हूँ, yeah और उसको डेवलप करते करते मैंने एक हार्ड बाउंड स्क्रिप्ट तैयार कर ली और उसको फिर पिच करना शुरू किया। true, टुडे द सिनेरियो इज कंप्लीटली चेंज्ड। okay, हाउ इट चेंजेस? बिकॉज ऑफ अ सिंपल रीजन कि, और ये चीज इट हैज एक्चुअली कम फ्रॉम माय प्रीवियस एक्सपीरियंस व्हेन आई यूज्ड टू थिएटर रेगुलरली एक्सटेंसिवली okay, पैंडेमिक से पहले। right जो मैंने नाटक लिखे उनको मैं अपने एक्टर्स को दे देता था, right, और मैं कहता था मैं प्रेमचंद नहीं हूँ, मैं शेक्सपियर नहीं हूँ, आई कैन ऑल्सो कमिट माई ओन एरर्स। So yeah it's important for you to apply your own brain functionality, your own right, faculties, and basically try to make it more beautiful, the script. yeah Do not change the dimension of the character. Do correct, not alter the play, but just try to strengthen it more. Because yeah you never know. Tomorrow you might be a great prolific writer, you do not even know about it. आपने शायद right, उस दिशा में कभी प्रयास ना किया हो, but you might be thinking much more beautiful than me, despite the fact I have been writing for 7-8 years. obviously तो right, इस तरीके की बात जब हम लोगों ने प्रोडक्शन हाउस को एस्टैब्लिश किया, तो ये हुआ कि क्यों ना यार कॉन्सेप्ट को इन राइटिंग इंटर्न्स को दिया जाए, और इससे इनकी जो अपनी काबिलियत है, इनकी जो अपनी मशक्कत है वो अच्छी होगी, इनके अपने जो स्किल्स हैं वो और शार्पन होंगे, और आपको भी नए अलग अलग मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स मिलेंगे। या तो नहीं इससे क्या बहुत चीज अच्छी हुई चीज है दैट, आई थिंक या कि मतलब इसमें लाइक एक एक नई स्ट्रीम डेवलप हो रही है जो कि जी बहुत इंपॉर्टेंट है। जी एक जो जी ट्रेडिशनल लॉर्ड मैकाले की जो एक एजुकेशन पॉलिसी थी कि जो हमको सिर्फ और सिर्फ लाइक एक सपोर्ट स्टाफ बनाने के लिए जो बना के रखी हुई थी पूरी, उसको एकदम पूरा ट्रेडिशनल वे चेंज कर रहा है। और अभी मैं एक जगह देख रहा था मेटावर्स वगैरह के आने की वजह से जो थर्ड देयर इज अ वेब 3.0 विच इज कमिंग आउट, कि मतलब जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म और अब तो मेटावर्स जो इस तरीके की चीजें आ रही हैं, जी 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 क्रिएटिव इकोनॉमी इज गोइंग टू एक्चुअली रूल द होल ग्लोब। तो दैट वे अगर आप उस तरीके की चीजों को दे रहे हैं, लोगों को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, एक एक्टर्स को, एक राइटर्स को जो एक एक नए नए तरीके का एक सपोर्ट जो उनको मिल रहा है, आई थिंक दिस इज समथिंग व्हिच वाज अ मिसिंग लिंक इन द सोसाइटी जो आपने जी बताया। या जी। तो उसमें सर क्या चीज है कि जैसे जो आपने बहुत अच्छा मुद्दा भी उठाया, मेटावर्स वगैरह के इंसेप्शन के बाद, उसके इंट्रोडक्शन के बाद चीजें काफी चेंज होंगी, एंड दे एक्चुअली बी the entire, I would say the social engineering would be in favor of creative people a lot एग्जैक्टली afterwards. क्रिएटिव पीपल या जी, तो I really hope that कि ऐसा कुछ सोशल निजाम हो, ऐसा कुछ सोशल ऑर्डर हो जो कम से कम क्रिएटिव पीपल कहीं ना कहीं फाइनेंशियली और इस तरीके से सपोर्ट करे। हैविंग सेड दैट सर, इससे क्या चीज हुई कि एक तो मेरी खुद की राइटिंग बहुत निखर के आती है, राइट, मैं डिबेट करता हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ अपने इंटर्न्स के साथ, वो मुझे 4 नए लॉजिकल पॉइंट्स दे रहे हैं, तो इससे ना मेरा फायदा हो रहा है ना इंटर्न का, कहानी का बहुत फायदा। कहानी का फायदा हो रहा है बिल्कुल। और क्योंकि हम स्पीकिंग प्योरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्टर्स एंड ट्रेनिंग एक्टर्स एज अ राइट मेंटोर ऑफ एक्टिंग, या हम
कोई एक ऐसे काम में अपने प्रोडक्शन हाउस को लिमिटेड या महदूद करके नहीं रखते कि हम यही करते हैं, कि ये नहीं है कि सिर्फ हमें शॉर्ट फिल्म्स बनानी है या साहब हमें राइट, फीचर ही बनानी है, हम नाटक भी कर सकते हैं। तो कहीं ना बिल्कुल, कहीं आपका हमारे साथ जो एसोसिएशन होता है एज एन एस्पायरिंग एक्टर और एज एन एक्टिंग स्टूडेंट, राइट, आपका हमेशा ये उम्मीद बनी रहती है कि यार हम किसी भी लेवल पे काम कर सकते हैं। तो हो सकता है आज हमारे पास फंडिंग ना हो, या आज हम लोकेशन जिसके लिए तलाश कर रहे हैं शॉर्ट फिल्म के लिए वो आज हमारे पास पॉसिबल नहीं है, बट हमारे जो एक्टिंग स्टूडेंट्स जो हमसे सीख के गए, वो करेक्ट, इस नजरिए के हैं कि साहब हो सकता है 1 महीने 2 महीने तक हमें लोकेशन ना मिले तो क्यों ना कोई एक प्ले कर ले, तो हम बिल्कुल, नाटक भी या कर सकते हैं। So we are करेक्ट, open to multiple vistas. The only intention is to give at least some kind of a support mechanism or a platform to actors and writers where they would not feel that, oh my God, I have done the course from Shahjahan Prosceniums, now what? या ऐसा नहीं, राइट, ये ना हो। तो एक प्रॉपर क्लोजर जिसकी हमने बात की, एक प्रॉपर सबमिशन के साथ। इनफैक्ट मैं इस आपकी परमिशन से सर एक छोटी सी बात को प्लग इन करना चाहूंगा। 31 मार्च से हमारा नई दिल्ली गोल मार्केट के पास फिजिकल थिएटर वर्कशॉप, फिजिकल एक्टिंग वर्कशॉप फॉर अ मंथ इज राइट, बिगिनिंग, वो शुरुआत हो रहा है वाओ, वाओ, जी। और अमेजिंग, उसमें वी आर ट्राइंग टू मैक्सिमाइज योर एबिलिटी टू वर्क इन अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, राइट, राइट. जो आपने लिंक्डइन वगैरह पे Yeah. देखा भी था। I think that's really good, and I request all the audience here कि मतलब if it is possible and if you think that this is something which can connect to your heart and which can actually gel well with your passion, don't miss out this opportunity. Probably you can actually go to the LinkedIn, connect with Manil Mishra ji, and you can share your thoughts, and if possible you can join this particular workshop also, which is happening on 31st of थैंक यू March, सर, थैंक यू। which can be really really amazing, क्योंकि इस तरीके की चीजें काफी रेयर होती हैं। मतलब जो बाकी सारी चीजें हैं वो तो हमारे वेबिनार सेमिनार्स और ये सब चीजें होती रहती हैं, लेकिन अगर आप बात करें कि एक थिएटर लेवल पे जो होती है, एक आर्ट लेवल पे होती है काफी, और ये चीजें मार्केट में ज्यादा आती नहीं है। मतलब एक तो अपने क्या होते हैं कि इनके अपने जो टारगेट ऑडियंस है वो बड़े डिफरेंट होते हैं, और दूसरा ये कभी ज्यादा चीजों को प्रमोट करने में भी पता नहीं क्यों it never comes out so easily in the market. So if anyone is interested, I request you can connect with Mr. Mishra on LinkedIn, and then probably you see that it can be really helpful for you, and I would be more than happy that through MSMX platform, if we are actually supporting in any which ways towards any part of either towards the participant side or either towards that organizer side, we would be more very very like really happy to support the whole ecosystem, because that's how we develop the ecosystem. तो वो एक बहुत अच्छी चीज है, and I request any one of you, maybe like अगर आपको लगता है कि आपके किसी फैमिली में किसी को इस तरीके के सपोर्ट नर्चर की जरूरत है, you can definitely share this thing on that line also. तो Manil ji, if somebody wants to connect with you on LinkedIn, will that be okay? या सर, लिंक्डइन इज परफेक्टली ऑल राइट। अगर आपकी इजाजत हो तो आई विल पुट दी व्हाट्सएप नंबर ऑफ अ प्रोडक्शन हाउस। Please, तो please, please, you can put basically on the जहाँ पे chat. Yeah, yeah. जी, so that is the easiest way. I mean, of course, you will also get to know about those numbers from LinkedIn, Facebook, Instagram, wherever you would Right. want to go. Yeah. The name of the program is How Not to Act. Yeah, बड़ी So यूनिक है, whatever मतलब remains after इवन that is या pure acting. जी, राइट राइट, मतलब ये बड़ा यूनिक लगा मेरे को। लोग बताते हैं कि हाउ टू डू एक्टिंग, लेकिन जब आपने ये लिखा हाउ नॉट टू एक्ट, जी। तो ये बड़ा यूनिक था। आई थिंक दैट इज रियली um, गुड। इरफान साहब एक बहुत अच्छी बात कहते थे सर, द या लेट इरफान फ्रॉम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, सच अ ब्रिलियंट एक्टर ही हैज बीन, राइट, and I don't know, according to the design of this universe, he was taken from us so early. Otherwise, he would have actually done so lot many wonders also. नो Would have डाउट, given नो us डाउट, much better films also in the future. नो डाउट। वो एक बात कहते थे कि कैरेक्टर आप अगर सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको करना है, तो या जब वो क्राइसिस में जाता है ना, जब उसके ऊपर संकट आता है, तो आप या उसे संभाल नहीं पाएंगे। बिल्कुल, इसलिए कैरेक्टर को निभाइए मत, उसे जिए। वाह वाह, और जी आप तब सकते हैं जब आप एक्चुअली अभिनय नहीं कर रहे हैं। Whatever remains is the real and the truth of that character. The ओके, only thing is me being an audience, I've just seen it and I've praised you also, adulation दे दी, but actually वो अपना कैरेक्टर जो वो जी रहा है। या या तो वो बहुत साल पुरानी बात है और बहुत मार्के की बात थी। It was something which actually resonates and has basically been living into my subconscious ever since I've heard about it. या और मुझे ये लगता है कि इससे बेहतर बात अभिनय के क्षेत्र में अभी तक किसी ने नहीं। राइट, तो ये एक जेनेसिस है कि हमारा जो प्रोग्राम 31
मार्च से 31 मार्च से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है, हाउ नॉट टू एक्ट. Yeah. So it's only about to make you prepare how basically be in the character or how basically be true to your craft rather than just having an outwardly understanding of it and all. एक महीने के लिए. और सर की परमिशन से मैं ये एक छोटा सा व्हाट्सएप नंबर और डाल देता हूँ. Sure, sure. Please. You can put on the chat, and I request the audience कि if you think that this can be helpful for you, please take a note of it. Take a screenshot also, so that what will happen, आप किसी ना किसी को कहीं ना कहीं से तरीके से एक सपोर्ट कर सकते हो. तो इसीलिए I suggest you don't miss the chance. If you feel that कि this is something which is good, मनिल जी इसको to everyone कर दीजिए. मैं 1 मिनट कर रहा हूँ. 1 second. पैनलिस्ट के लिए. हाँ, नो प्रॉब्लम, आई एम जस्ट डूइंग इट. तो ये है आपके लिए नंबर जो हमने शेयर कर दिया. यू कैन एक्चुअली कनेक्ट ऑन दैट लाइन, एंड इफ यू थिंक दैट 31st March probably you can be able to do that, nothing like it. और लास्ट 2 क्वेश्चन हम जरूर लेंगे मनिल जी से. इनफैक्ट वन ऑन द इन टर्म्स ऑफ MSMEX का एसोसिएशन, क्योंकि मतलब किस तरीके के वेबिनार होते हैं, क्या होते हैं, जस्ट कुछ things about that. And then I request from the audience, if you are having any question and answer, you can question, not an answer, so you can just put a question there, and we will be more than happy to take any question, even if it is related to the theater, to the business, or toward any kind of inspiration, motivation in last 1 hour which you are able to understand, experience. किसी भी चीज से रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो फील फ्री ऑन दैट लाइन. तो मनिल जी, इन टर्म्स ऑफ योर एसोसिएशन विद MSMEX, या मतलब जो भी कहते हैं ना कि एक थॉट अबाउट MSMEX एज अ प्लेटफॉर्म, यू कैन शेयर विद अस. जी, थैंक यू सर. तो अच्छा, उसके पहले मैं आपकी परमिशन से बता दूं कि जो नंबर मैंने चैट पे हम लोगों ने शेयर किया आपके साथ, दैट इज अ व्हाट्सएप नंबर ऑफ शाहजहांपुर प्रोसेनियम्स. So you can leave a WhatsApp. From there we can talk also. We can get to know about the program, how not to act. तो वो WhatsApp नंबर है और उसको WhatsApp की तरह से हमारे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं. Speaking of my relationship with MSMEX, sir, it was like I told you, ऑनलाइन मीडिया में MSMEX ने एक तो सबसे पहले पैंडेमिक में एंटरप्रेन्योर्स को, बडिंग जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, उनको बहुत मदद की है. और ये मुझे लगता है the massive participation which I've seen in multiple sessions of yours. It was difficult for me to formulate the course structure during the pandemic, me being a teacher I'm only talking about, to let it get disseminated and spread out to my students, acting students. अब उसमें अलग अलग मोनोलॉग्स हैं, स्टेज थिएटर की स्क्रिप्ट्स हैं, या फिर कुछ रिकॉर्डेड वर्जन्स हैं. जिन कॉलेजेस में मैं पढ़ाता रहा हूँ वहां पे अचानक से एकदम ऑनलाइन हो गए. तो जो चीज पहले आप देख रहे थे, फिर उसके बाद आपको ये लगा कि अरे यार, ये लैपटॉप पे कैसे सिखाई जाए, लैपटॉप पे उन तक पहुंचाई कैसे जाए. मैक्सिमम आपको पता था ईमेल होता है, फिर जूम वगैरह से आप इंट्रोड्यूस हुए. MSMEX में सबसे पहला जो मैंने सेशन अटेंड किया था वो केवल किशन जी का था, एंड ही टोल्ड अस हाउ टू ऑटोमेट एवरीथिंग थ्रू वेरी सिंपली गूगल वर्कस्पेस. Google Docs, yeah. Google Workspace, yeah. Amazing, very well, yeah. जी, so I'm very technologically challenged. I do not know much about it. मुझे गूगल ही पता था. तो जब मैंने उनका सेशन अटेंड किया, फिर उनके प्रोग्राम वगैरह के बारे में जाना, तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत आसान है और इसको आप मतलब ऑफलाइन से भी ज्यादा बेहतर कर सकते हैं. तो वो मेरा पहला इंट्रोडक्शन था MSMEX के लिए, एंड आई वाज एक्चुअली थैंकफुल. आई थिंक आई रोट अ नोट आल्सो समवेयर दैट दिस वाज एन अमेजिंग सेशन. यस, आई डिड. एंड कि आप लोगों ने बहुत अमेजिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया, और वो सेशन इसलिए अमेजिंग है क्योंकि मुझे एक्चुअली जो चाहिए था जिंदगी से इस ऑनलाइन मीडियम के दौरान, इस ऑनलाइन मीडियम के जो काइंड ऑफ एनवायरनमेंट इट वाज, उस वक्त जिस चीज की एक्चुअल जरूरत थी वो आप लोगों ने प्रोवाइड किया, MSMEX ने. सेकंड अप सर, आई आल्सो I love the way Dilnawaz bhai speaks when he talks about pitching. Yeah. And I got introduced to Dilnawaz bhai only on MSMEX only. Wow. Yes. Super. So he has been on Clubhouse. I mean, I basically joined him on Clubhouse after having attended his sessions on MSMEX. तो वो काफी चीजें अपने जो उनका अपना एक वेंचर है, जो उनकी अपनी एक कंपनी है, उसके थ्रू बताते रहे कि पिचिंग में ये होना चाहिए. अच्छा, मेरा ये रहता है कि यार चीज जरूरी हो ना हो, सुन के तो देखो.
हाँ, मतलब एटलीस्ट देयर इज नो हार्म इन इन There is इन no harm लाइक in यू नो, या understanding it. तो उस करेक्ट वक्त करेक्ट, ये काफी चीजें थी कि यार फंडिंग वगैरह चाहिए तो पिच डेक अच्छी होनी चाहिए। फीडबैक तो अच्छी होनी चाहिए। उस वक्त जी, उस वक्त आपको पता होना चाहिए कि तो दिलनवाज भाई का सेशन जो था वो फॉर्चुनेटली एमएसएमई का, बिकॉज आई केम इनटू योर डेटाबेस, माय ईमेल आईडी इनफैक्ट, या तो मुझे रेगुलर इनवाइट्स वगैरह आते रहे, तो मैंने दिलनवाज भाई का किया। देयर वर कपल ऑफ अदर ओकेजन्स आल्सो सर वेयर they were very fruitful otherwise also. Let's say you're just वाओ, attending that session, you'll earn a lot, learn a lot. Why? Because they're about leadership, they're राइट, about entrepreneurship, they're या about how to develop, let's say, some kind of conducive environment in your own organization. तो ये सुनना किसे एब्सोल्युटली, पसंद नहीं होगा, आप बिल्कुल, कुछ भी कर रहे हो। या तो या वो सेशंस जो मेंटोर्स थे वो एमएसएमई एक्स के द्वारा बहुत अच्छे रहे सेशंस मेरे। वेरी एंड नाइस, the one thing which I definitely would want to outline about MSMEX per se is that the entire organization is very professional and the speculations are almost correct. या तो वो जो या जो जो स्पेकुलेशन की बात मैं कर रहा हूँ, मतलब ये नहीं है कि हम स्टॉक मार्केट में बैठे हैं, लेकिन राइट, कोई एक शख्स है जो ये देख रहा है कि अगर एक मेंटोर अपनी जो बात है वो बात रख रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ऑडियंसेस का भी ध्यान रखना है। एग्जैक्टली, तो या एक शख्स अगर एक मेंटोर अगर अपनी बात कह रहा था, राइट, and there were 2 3 people from MSMEX who were basically keeping an eye upon the general organization of the entire session, let's say online session. There was always one person who was just keeping and peeping into the chat window, किसने क्या पूछा, किसने क्या पूछा। तो उससे ये लगता, और अगर ये भी था, मुझे आज भी याद है, या अगर ये भी था कि जैसे फॉर एग्जांपल ड्यू टू द paucity of time, let's say there was some shortcoming of time and the mentor does not have much time and everything, so they राइट, would definitely take a note or basically make it sure that you get the reply to your question onto your email, and I did get that वाओ, to a large वाओ, extent. So if I वेरी was नाइस, told on the chat window in one of the राइट, sessions, see the session is about to get over, but we have राइट, noted down a question. You can expect a reply from us on your email or in your inbox about this particular reply. So कितनी बारी बात ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग बहुत कुछ कह देते हैं बट निभाते नहीं। राइट, तो मैंने भी सोचा अच्छा चलो बात आई गई होगी कभी और सेशन, लेकिन एक्चुअली द ईमेल फ्रॉम MSMEX did land up into my inbox containing that valid reply. So वाओ, वाओ, these small things, no, the detailing राइट, part of MSMEX, especially during the session, is very mention worthy, and which is why I think it separates you from separates MSMEX from a lot of other platforms. बहुत बारी ऐसा होता है कि हम कोशिश ये करते हैं कि एक अच्छा सेशन हो जाए, लेकिन सेशन राइट, के आसपास जो चीज, वो या मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगा कि एमएसएमईएक्स जो है वो उन चीजों का भी उसी तरह ध्यान रखता है जैसे सेशन का रखता है। या एंड और ऑफ पूरी कोर्स टीम, या पूरी की पूरी पूरी टीम जी, टीम पूरी टीम इतना सीमलेस काम करती है कि लाइक यू नो, जैसे अब आज हम लोग ये सेशन कर रहे हैं, बैकएंड में आप समझ लीजिए कि पूरी की पूरी एक इंजन टीम चल रही है, और जी वो जी, मैं इतना बिल्कुल सीमलेस काम करती है कि किसी को कोई भी इश्यूज नहीं होते हैं, और एकदम मतलब जिसको कहते हैं ना कि आपका जो फ्लो है वो एकदम सपोर्टिव हो जाता है, और लोगों को सपोर्ट भी लगता है कि यार मतलब ऐसा भी नहीं कि बीच में जूम कभी खराब हो रहा है, या बीच में जी। कभी ये प्रॉब्लम आ रही है, कभी ये डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, कभी आवाज नहीं आ रही है, वो सारी चीजों को देखने के लिए जो टीम है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से गाइड की जा रही है, यू नो, एंड देन दैट्स हाउ इट रेसिप्रोकेट्स इन टर्म्स ऑफ द ऑपरेशनल लेवल। तो ऑपरेशन दैट इज लेवल द रीजन, या और सर मैं इस बात में पर्सनली ये भी कोट करूंगा कि देखिए ये सेशन जो हमारा है, या इसको लेके आप लोगों ने काफी मेहनत करी। मतलब राइट, मैंने तो सिर्फ वही बताया जो मुझे मैंने जो जिया है या मुझे आता है या जो मैंने अनुभव किया है। लेकिन एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज जस्ट आउट एन ओपन सीक्रेट। एक व्हाट्सएप राइट, ग्रुप बनाया गया जिसमें या मुझे आई वाज ऑलवेज केप्ट इन लूप ऑफ दीस काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस एंड हु इज गोइंग टू बी टेकिंग, विवेक सर के बारे में बताया गया। देन आई गॉट अ पर्सनल कॉल फ्रॉम विवेक सर। दिस ऑल शोज दैट you people as an organization are actually working meticulously. It is या not some kind of a job, it is some kind of a passion. और करेक्ट, ये बहुत अच्छी बात है सर। ये मतलब अगर if given an option would certainly want कि अगर इस तरीके का जो वर्क कल्चर है या एथिक है वो ट्रांसलेट हो जाए हर ऑर्गेनाइजेशन। तो या you guys are doing wonderfully well, I mean of नहीं, course। यही चीज मतलब, यू नो, आई मीन दिस इज ओनली द रीजन that why this inspiration stories like you know is inspiring hundreds and thousands of the people on the daily basis. So वही रीजन है कि because everything जो भी करो वो दिल से करो, you know, जी there is no nothing like you know that only for the sake of having it kind of thing we have to do it kind of, एक टिक मार्क एक चेकलिस्ट बना दिया और वो कर रहा है, तो वहां पे कहीं नहीं है। कहते हैं ना कि जो चीज आप दिल से करते हो तो उसका जो 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 रिजल्ट आता है
वो कई 100 गुना बढ़ जाता है. जी तो जी that is the reason. So I suggest all the participant here to please put a clap for MSMEX team for doing such a wonderful job by putting, like, you know, the emoticons or put emojis in terms of the chat if you are liking that thing what MSMEX team do, before we take the last question from our guest Mr. Manli Mishra today. Right? Thank you so much. Thank you so much, the people who are clapping it. And the last question is on the basis of, like, you know, basically the recommendation, what we expect as a recommendation from you for fellow businessmen and audience. You know, one or two tips, कहते हैं ना कि जो आप चलते चलते जो बता देते हैं वो चीजें हर समय जहन में याद रहती हैं. तो you know, एक दो recommendation which you want to actually share with the audience and the businessman here. अब जैसे एक तो सबसे पहला रिकमेंडेशन और सजेशन और एक्सपेक्टेशन, सबसे ज्यादातर एक्सपेक्टेशन है, ऐसे ही ऑडियंस अच्छे से बने रही है. The worthy audience have always been listening to all of us patiently, you know, just joking. I think for anybody, especially for people who are innovative, people who would want to do something new, be it in the field of corporate structure, business, or, you know, you would want to, you know, kind of start a new venture, or even the audience also, because audience and, like, I do not classify audience as just as audience and not being an entrepreneur. आप में से बहुत सारे लोग अलग अलग जगह माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. I think I would go by the dictum and the saying of the, what of this, oh, this beautiful painters of our yesteryears, the beautiful painter who was even a sculptor also. He was everything. Yeah. Picasso, yeah. Pablo Picasso. स्पेन Right. से ताल्लुक, स्पेन के थे वो, स्पेनिश पेंटर Spanish थे, रहे. yeah, right. जी स्पेनिश थे, जी स्पेनिश थे. Madrid. और वो एक बहुत खूबसूरत बात कह के गए. Yeah, वो कहते थे, everything you can imagine is real. yeah, I think that sums up the entire struggle, sums up our dream culture, sums up everything which we want to, or we have done till now in our lives. आपने जो कुछ भी चीज, आपकी जो ख्वाहिशात हैं, आप जो सपने पाले हुए हैं या जो सपने आपके हैं, वो सब सच हैं, बस पूरा होने की देर भर है. तो आपने जो भी कुछ इमेजिन किया है, जो भी आपके तसव्वुर में है, ख्वाबो ख्याल में है, कल्पना में है, वो सब कुछ असलियत है, बस उसको छूने की देर भर है. तो वो बहुत खूबसूरत बात कह के गए. और अब इसको आप रिकमेंडेशन कह लें, एक्सपेक्टेशन कह लें, लाइन ऑफ थॉट कह लें. Who am I to even recommend anything to anyone? There are people who are much bigger than me. बट मुझे लगता है कि ये लाइन ऑफ थॉट अगर जिंदगी भर एक गांठ में बांध लिया जाए या अपने दिल में कहीं रख लिया जाए, तो ये जिंदगी में बहुत सारी लड़ाइयों में आपको जीतने के लिए प्रेरित करता है. ये लाइन ऑफ थॉट या ये उनका कोट या सेइंग, एवरीथिंग व्हाट यू कैन इमेजिन इज रियल. तो yeah. मुझे लगता है कि यही मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि जिस चीज की आप कल्पना कर सकते हैं वो हकीकत है. Wow. Really great. And just want to take a opinion, I mean, the feedback from the people. How are you finding it and how are you liking it, kind of thing. And, you know, just want to tell you that these are all the golden nuggets जो कि आज हमको मनिल मिश्रा जी से सुनने के लिए मिला, सीखने के लिए मिला. और definitely core from my heart, we are very, very much thankful to you for Thank you. sparing of the time and really, like, you know, sharing all your best wishes, best thing, best learning to all of us. And मतलब जनरली ये चीजें इतनी आसानी से मिलती नहीं है, लेकिन आज आपने समय निकाला, हमारे साथ वो चीजें शेयर करी, अपनी पूरी जर्नी हमको बताई. We are really very much thankful to you and looking forward to connect with you once again in some more bigger platform. And when we are having a bigger story also, we'll definitely look forward to connect with you and learn more about that. And I'm really thankful to you also, sir, for taking out time, investing your energy, thinking about me, first of all, the team MSMEX and the people and family, for thinking of me as somebody who can inspire anyone and letting me speak my heart out. तो ये जो opportunity है, ये मेरे लिए सर हमेशा बहुत खूबसूरत रहेगी. So I am really, really thankful to the entire team of MSMEX and to you also for being such a wonderful host, and to the entire audience, all entrepreneurs, everybody who just have been with us, all those people, and basically prioritized us out of the busy schedule. और जिंदगी में busy होने के बावजूद, मसरूफ होने के बावजूद उन्होंने हमारे लिए इतना वक्त निकाला. Thank you very much, everyone. Thank you. Right. Thank you so much. And I look forward once again to connect with all of you with one more inspiring stories, which we have got in stock, and we'll share you the details shortly. Thank you so much, Manil Mishra ji. It was really a pleasure connecting.
Thank you, MSMEX team, and look forward to connect once again. Thank you. Thank you, sir. Thank you very Thank much. you. Thank you. Yeah.